List of Mute on pronounced class Zoom class. School and the classroom management course Zoom attend பண்ணி certificate போடணுமா certificate எத்தனை மணி நேரம் தெரியும் तो गाना बजा दो अरे करो ना वापस खा ले कुछ चाइना वाले उल्टा से मेरी थी वो राउंड राउंड घर का लगाई हुआ है क्या है चालू नहीं हुआ ग्रुप चैट गुड इवनिंग सर अरे देखो ये खुल के पास ही है अरे सभी में खुल में अरे ये तुम्हारा कौन है ये अभी कौन आया था हाँ I am a the person. Roy now चलो कलेक्टर में हाँ बैठता है हाँ बैठता है मेरे को साइन करवाना कलेक्टर कहाँ बैठता है हम लोग साइन डीसी पे में जमा करना कलेक्टर का साइन Yes, good evening, educators. good evening sir गुड इवनिंग सर Good evening, everybody. Just a while, we are going to start the session. I think still some participants are joining. Yes. Not mute all, allow participant to mute themselves. Rahul sir, you are a co-host now. You can make other participant to join. I am going to start the meeting. There are already 50 plus participants. It shows that my fan following increasing day by day. Thank you everybody. Educators, आपने अपना अमूल्य समय इस मीटिंग को दिया. And my responsibility is to make this session quite interactive. Not I cannot make it interactive because cannot possible two ways on online, but quite learningful, knowledgeful for you all, because I respect educators and your time as well. Or we are going to start within a minute, just a minute. Good evening, everybody. Ritu ma'am is there? यस सर Are you a host or not? Nahi नो yaar. सर Just a minute. I am unable to find where you are. Just. ग्रे कलर की
என் பேக்ல இருக்க அந்த ரெட் கலர் புரியுது இல்ல. Ritu ma'am, now you are sir. co-host and I think you are able to join participant now. Sure, sir. Yes, we are going to start within a while. Just இருக்கும் bus. கையே புரிஞ்சு வந்ததுமே ஏன் சாப்பிடல? hello everyone, once again, welcome back to all. This is the recording session, as you know Namaste, that. sir. Yes, good evening everybody. तो ऐसे ही फैन फॉलोइंग बढ़ाते जाइए. When I see the crowd, so I feel like enthusiastic. And dear teachers, this is the session regarding classroom management. देखिए, क्लासरूम, स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इन सारी चीजों से अबव है एडुकेटर्स. आपका जोश, आपका ऑल टाइम हाई रहना. इफ देर आर 6 hours in the you will have to stay in the classroom, 6 घंटे की क्लास है, तो 6 घंटे का जोश. सो हाउ द जोश हाई सर. सो 6 घंटे का जोश हाई रहना, इट्स अ बिग डील, इट्स नॉट अ इजी डील. यू कैन से 6 घंटे अपने आप को एंथुसियास्टिक बनाए रखना, दैट्स अ मार्वेलस जॉब. I just request you all, I just hats off you all with folded hands कि आप लोग इतना मेहनत करते हैं, रोज 6 घंटे अपने आप को एकदम करंट में बनाए रखना, इट्स अ बिग डील. सो एवरीबडी एबल टू सी माय स्क्रीन? Yes, no, maybe? Yes, sir. Yes, sir. It's visible. Okay. So now, this is the slide about here on the screen about classroom management. Okay. So, Ritu ma'am, take care of all the participants. चाय पानी का ध्यान रखिएगा. जी sir. So this is the slide about classroom management. So teacher, as I told you कि classrooms management के लिए if जरूरी नहीं है what here on your screen doesn't require degree. It's classroom management doesn't require extraordinary competence. It is only required, it's a required skill. It is an art handling kids efficiently and making teaching learning process effectively and interesting. That's all. So this is, मैं समझता हूं कि 21st century और NEP 2020 को जितना मैंने सीखा है कि इफ यू आर अ मंकी, अगर टीचर्स मंकी है तो ही वो अब सर्वाइवल है. सो मंकी इट मींस, डोंट टेक इट अदरवाइज लाइक मंकी की हमें कुछ और इसका मतलब है. इसका मतलब सिंपल सा ये है कि टीचर शुड ऑल टाइम be in the class, be in the students. Excuse me, sir. Sir, the previous slide, can you please put it? I'm just writing it, sir. Please go on Slide, slowly okay, because okay, everything okay. I'm noting it down. Yeah, thank you very much, sir. You can take a screenshot also. So here is my next slide. देखिए टीचर्स, बिफोर स्टार्टिंग अ चैप्टर, जरूरी नहीं कि हम डेली टीचर्स को मतलब चैप्टर्स को हम डेली एक तरीके से पढ़ाएं, या स्टोरीज को, या फिर इंग्लिश लिटरेचर है. तो देखिए,
कुछ टीचिंग टेक्निक्स ऐसी होती है जिसमें स्टोरी फॉर्म में या फिर पहले ही हम उसके कंक्लूजन को समरी कर देते हैं, चैप्टर के कंक्लूजन को भी समराइज्ड बिफोर द टीचिंग, और फिर उसके बाद जैसे कि लिटरेचर में स्टोरी हो गई कि भाई ये इस टाइप से टीचर्स बता देते हैं बच्चों को, तो उससे क्या होता है, टीचर का एक बच्चों का एक कनेक्शन बन जाता है, हाँ 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 टीचर मुझे पूरी पिक्चर ही तो पहले ही बता रहा है, तो बच्चे कनेक्ट हो जाता है। कुछ थोड़ा सा सरप्राइज हम बीच में छोड़ के रखें बच्चों, ये आजकल आप देखते हैं यूट्यूब वीडियो, सोशल मीडिया का जमाना है, फॉलो सब्सक्राइब पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में कुछ ना कुछ एक लर्निंग है ना, चाहे वो कुछ भी लर्निंग हो, एक हुक रहता है, हुक हुक हुक। सो टीचर्स कैन क्रिएट अ हुक इन योर लेक्चर कि बच्चों आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, लास्ट में मैं एक मजेदार चीज बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मुझे लगता है कि गेम्स एंड एक्टिविटी, तो ये तो आप लोग हर जगह सुनते ही होंगे कि गेम्स करवाओ, एक्टिविटी करवाओ। देखिए गेम्स नहीं करवाना, एनईपी में जो एनईपी में अभी जो आया है उसमें गेम्स भी आपको पता है किस टाइप के आए हैं। गेम्स आए हैं जैसे कैरम हो गया, चेस हो गया, टीम ए बना लिया, टीम बी बना लिया। मेनी टीचर्स आई सॉ इन माय इन रुक्मणी देवी स्कूल आल्सो करवाते हैं, टीम ए हो गया, बी हो गया, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेक ट्राई टू मेक सेशन इंटरेक्टिव। सो वो सारी चीजें तो है ही, साथ में Excuse me, sir. yes Sorry yes to disturb, sir. Sir, can you don't converse in disturb me, English, please sir? between the session. I would urge with folded handed. You can ask after the session anything. I will tell you, I will give you a slide in your personal number also. This is the, we will, after that we will send a Google form. Every teachers just put your contact number, need to put your mail. So we'll mail you also. No issue. This session, this the whole slide, all presentation, I will mail you all. Okay. But please, I would like to request all folded handed session चल रहा है उसको चलने देते हैं. That's all. सो वेयर आई एम, हाँ देखिए गेम्स एंड एक्टिविटी, देखिए आप समझ सकते हैं कि रिदम टूटता है तो वो प्रॉब्लम होती है। बच्चे भी आपको क्लासरूम में डिस्टर्ब करते हैं ना, आप पढ़ा रहे हैं और बच्चा पीछे से बोला मैडम ये मैडम वो, मैडम डिस्टर्ब हो गई, मैडम का माथा पंचर हो गया, अलग क्या डिस्टर्ब कर रहे हो, चिल्ला देते हैं। देखिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ठीक है बच्चों के क्वेश्चन लीजिए, मैं आपके क्वेश्चन लूंगा, लेकिन अभी यहाँ पर टॉपिक चला डिजिटल लर्निंग। डिजिटल लर्निंग इज मस्ट रिक्वायर्ड। बच्चों को हफ्ते में 2 बार, एक बार डिजिटली आप कनेक्ट करेंगे तो दैट्स ऑल्सो गुड। अगर आपके क्लास में परमानेंटली अगर डिजिटल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है तो दैट्स गुड। इंफ्रास्ट्रक्चर से एक चीज ध्यान आती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन टीचर्स, डियर एडुकेटर्स, सारी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, इफ फ्रैंकली आस्किंग मी, देखिए पहला का एजुकेशन कैसा होता था, गुरु शिष्य को क्लासरूम लर्निंग इज द मैकाले की जो शिक्षा पद्धति हम पढ़ रहे हैं, और मैकाले की शिक्षा पद्धति थी क्या थी कि बच्चे पहले जंगल में पढ़ते थे, मतलब आश्रमों में पढ़ते थे, और उनको रूमों में पैक किया है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति ने। उन्होंने कहा था कि मैं इंडिया के हर बच्चे को बाबू बना दूंगा, मतलब कि एम्प्लॉय बनाऊंगा। सो आप समझिए कि क्लासरूम में चलिए ठीक है, अब तो हम बरगद के पेड़ के नीचे नहीं पढ़ा पाएंगे बच्चों को, लेकिन टीचर्स का एडुकेटर का विजन, दिस इज द होलिस्टिक डेवलपमेंट, दिस इज द स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी। जरूरी नहीं है अभी क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट हो, आपके यहाँ पे सारी इंफ्रा हो, सारे आपके पास चार्ट्स हो, ये हो वो हो, आपके पास ऑडियो विजुअल काफी शानदार बोर्ड हो, है ना, तो आप अच्छे से पढ़ा पाएंगे। देखिए ये सारी चीजें फ्रैंकली सेइंग रिक्वायर्ड, मस्ट, मैं समझता हूँ कि रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर आर रिक्वायर्ड, बट व्हेन इट कम्स टू इंडियन schools, Indian infrastructure, so there are only top 10 to 15 school in each and every city. आप जहां पे गली मोहल्ला, मेट्रो सिटी, ए क्लास सिटी, बी क्लास सिटी, जहां पे भी रहते हैं आप घुमा के देख लीजिए, देयर आर सम स्कूल्स, 10 से 15 स्कूल जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि सारे स्कूलों में हर चीज है। तो एडुकेटर्स आपके यहाँ माइंड में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, आप अपने माइंड, हाँ मैं कहा था गेम्स एंड एक्टिविटी, सीबीएसई क्या सिखा रही है बच्चों को, कंचे खेलना, आर यू गेटिंग, कंचे खेलना, गुल्ली डंडा खेलना, पतंगबाजी करना। व्हाई? बिकॉज दे वांट, द गवर्नमेंट वांट, एनईपी वांट कि बच्चों में
वो पुराना लगाव जो हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं वो आए। ठीक है, तो बडी सिस्टम इस पे लिखा नहीं है, लेकिन बडी सिस्टम एज यू आप जानते होंगे। क्लासरूम मैनेजमेंट के टॉपिक पे वापस आते हैं। 1-to-1 इंटरेक्शन इज नेसेसरी, मैंडेटरी। देखिए, कभी भी ग्रुप में बच्चों से आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बच्चा रेंडमली आंसर कर रहा है, कोई ने हाथ उठाया, कोई ने आंसर कर दिया, नहीं। बच्चों को आपको 1-to-1 इंटरेक्शन, भाई खड़े हो जाओ, आपसे पूछा आप जवाब दो, दैट्स कॉल्ड 1-to-1 इंटरेक्शन। स्पॉटलाइट रूल्स, ये तो मैंने भी कल ही पढ़ा है, रुक्मणी देवी स्कूल में इसको भी हम लागू करने जाएंगे। Yesterday I understood, and from tomorrow we are going to implement. If you teacher are from रुक्मणी देवी स्कूल, तो आपको क्लास टीचर्स को एक क्लासरूम रूल्स बनाना, चार्ट बनाना। यू विल हैव टू प्रिपेयर अ चार्ट, यू कैन प्रिपेयर अ चार्ट, और आरडीपीएस के टीचर्स को तो बनाना ही है। And on that chart it is mentioned, clearly mentioned the classroom rules, what exactly you, what the help, what the support you want from the student side for making a class clean, neat, disciplined and all। तो उसके लिए एक चार्ट बनाइए, क्लियरली कोने में क्लासरूम मैनेजमेंट का आप मेंशन करके रखिए कि भैया ये डूज एंड डोंट्स हैं। अगर इसको किसी ने जंप किया तो इस क्लास को क्लास टीचर डायरी बना सकता है, एक पॉइंट टेबल 10 पॉइंट्स या 20 पॉइंट्स का उसको वो दे सकता है प्लस माइनस में। और अगर क्लास में अगर कोई कुछ भी, अगर आप इनडिसिप्लिन और ये कुछ करें तो उस क्लास में बोर्ड पे लिख दीजिए -5, पूरी क्लास का -5 कट गया है, वो मैनेजमेंट के पास जाएगा। एनुअल डे में आपकी क्लास को -5, मतलब आपकी क्लास हो सकता है कि जो बेस्ट क्लास की आपकी क्लास को अवार्ड नहीं मिले। ऋतु मैम, स्टिल सम पार्टिसिपेंट ट्राइंग टू ज्वाइन, प्लीज मेक देम ज्वाइन ना। सो आप लोग बिल्कुल ऐसा एटमॉस्फेयर बनाइए कि भैया कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर इज मस्ट रिक्वायर्ड, कि आपके क्लास में ऐसा कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर हो कि भाई आपकी क्लास में आज क्लास टीचर ने, किसी सब्जेक्ट टीचर ने गंदा देख लिया तो क्लास टीचर से शिकायत कर देंगे, ये सब्जेक्ट टीचर में मैथ्स टीचर हैं, लेकिन क्लास टीचर तो मेरी इंग्लिश टीचर है, तो लेकिन मैथ्स टीचर शिकायत करेंगे इंग्लिश टीचर से। इंग्लिश टीचर आएगी लंच ब्रेक में कहीं भी और उसको बोर्ड पे लिख देगी +5, अच्छा किया आपने, +5 मतलब अच्छा किया तो एप्रिशिएशन, अगर गलत किया है तो -5। और देखते हैं लास्ट में किस क्लास के कितने 50 में से कितने मार्क्स होते हैं, उस क्लास को हम विनर घोषित कर सकते हैं। रिवॉर्ड सिस्टम जैसे कि हमने बताया, स्पॉटलाइट रूल्स बताया कि भाई चार्ट बना के रूल्स देखो, रूल्स को डू एंड नॉट। देयर आर सम एक्टिविटीज, अटेंशन ग्रास्प एक्टिविटीज, आर यू गेटिंग? आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन? एवरीबॉडी लुक आफ्टर मी। आपको प्रेजेंटेशन स्लाइड दिख रही है? यस नो मे बी एवरीबॉडी? Are you able Yes, sir, to it's- see my presentation? Yes, no, maybe. Everybody. Yes, sir. Presentation दिख रहा है सभी को? Everybody able to see my presentation? Yes, no, maybe. से कमेंट करेंगे। No, sir, no, Yes, sir. प्रेजेंटेशन किसको दिख रहा है? कहाँ से Sir, प्रेजेंटेशन? only your face is visible. हाँ, राइट, माय फेस इज विजिबल। अभी प्रेजेंटेशन मैंने स्टॉप कर दिया था। सो व्हाई अब नाउ इज इट ओके? Yes, sir. नाउ आई, ये जो मैंने आपको आपका जो अटेंशन, मैंने जो प्रेजेंटेशन मैंने स्विच किया, तो मैंने आपका अटेंशन स्विच किया। आर यू गेटिंग? यू आर ऑनलाइन सिटिंग एट योर होम, आई थिंक मे बी यू आर मोनोटोनसली अटेंडिंग द सेशन, लेकिन मैंने आपसे पूछा कि स्विच किया ना मैंने, तो टीचर्स देखिए, जरूरी नहीं कि टीचर्स हैं तो सारी चीजें सही बोर्ड पे लिखे। गलती से अगर आप टीचर्स 2 + 2 4 होता है 5 लिख दो, गलती से लिख दो, फिर आप आगे बढ़े हो कि भाई आगे, तो बच्चा बोले गलत लिखा है, वो 4 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। रीडिंग ये क्या किया आपने? ये बच्चे के कोई स्पेलिंग गलती से रॉन्ग लिख दो, आप कल लिखना। बच्चे के अटेंशन को आपने क्या किया? ग्रैप्स किया बोर्ड पे, क्योंकि देखिए गलती सबको दिख जाती है। अभी ये स्लाइड में अगर कोई भी स्पेल में मिस्टेक होगी आपको दिख रही होगी, इतनी अच्छी स्लाइड बनी किसी को नहीं दिख रही होगी। रीडिंग, तो ये दिस इज द ह्यूमन साइकी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर है। तो भाई आप बच्चे के अटेंशन को कैसे ग्रास्प कर सकते हो? इंटरेक्टिव 2 वे अटेंशन। देखिए सोशल मीडिया, यूट्यूब वीडियोस, देन शॉर्ट्स, देन रील्स ने बच्चे का अटेंशन स्पैन खत्म कर दिया है, बिल्कुल माइनर सेकंड कर दिया। तो हर 5 मिनट 2 मिनट में, मेरी तो आदत है कि बच्चों को मैं क्या करता हूँ, मेरा आप समझ सकते हैं कि आपने पता होगा, बच्चों को मैं बीच बीच में बोलता जा रहा हूँ, स्टैंड अप क्लास, स्टैंड अप, सब खड़े हो जाते हैं, पता नहीं क्यों स्टैंड अप बोला सर ने। सिट डाउन नाउ, लिसन, दिस इज द अटेंशन ग्रास्प एक्टिविटी। आर यू गेटिंग? खड़ा किया, बैठा दिया, कुछ भी, व्हाटएवर यू कैन डू,
रेज योर हैंड, बार बार हाथ खड़ा करवाया, कौन जानता है भाई, उनसे टू वे इंटरेक्शन तो बनाना पड़ेगा ना। 35 मिनट का, 30 मिनट का, 40 मिनट का पीरियड होता है, कितना 5 मिनट 4 मिनट भी कोई अटेंशन ग्रास्प नहीं कर सकता, फोकस नहीं हो रह सकता बैठ के। दिस इज द स्टडी कि भाई किसी का भी ह्यूमन साइकी है कि भाई 1 मिनट में कुछ शायद 10 या 12,000 थॉट्स आते हैं हमारे मन में, तो कैसे आप अटेंशन ग्रास्प करोगे बच्चों का? बच्चों को अनयूजुअल एक्टिविटी करवा के ना, टू वे कन्वर्सेशन करा के, वॉकिंग ओवर द क्लास में पूरी जगह वॉक करना है। आई सॉ मेनी टीचर्स जो कि बोर्ड वॉक करेंगे यहां से वहां से वहां, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ओनली। अरे भाई बीच की गली में भी जाओ, रो में जाओ, गो लास्ट स्टूडेंट, उसके पीठ पे हाथ रखो, है ना, फिर बीच में आओ, फिर उससे बात करो, खड़े हो इधर लेकिन फिर तुरंत पलट जाओ, ताकि बच्चा कोई पीछे आपकी कॉपी तो नहीं कर रहा है। कॉपी से ध्यान आया, आज का सेक्शन बहुत इंटरेक्टिव है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए वॉइस मॉड्यूलेशन पिच के बारे में लास्ट वीडियो बनाया था। वॉइस मॉड्यूलेशन इज मस्ट रिक्वायर्ड, आर यू गेटिंग? हेलो, एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। Yes, sir. नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, आप लोग यस सर करते जा रहे हैं। सम स्टूडेंट्स दे आर लाइक कि वो होते हैं, है ना, टीचर्स ने बोला बच्चों समझ में आया, वो बोलेंगे यस सर। टीचर्स ने बोला है बच्चों समझ में पक्के में आया, वो फिर बोलेंगे यस सर। थर्ड टाइम टीचर बोला चलो तुमको समझ में आया, तुम आगे बताओ, तो बच्चा यूं मुंह देखेगा आपको। देखिए फ्रैंकली सेइंग, एडुकेटर्स यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ, मैं ईमानदारी के साथ आपको, बड़ी ईमानदारी के साथ एक बात बोलना चाहूंगा। टीचर्स को पता है कि मैंने आज मैथ्स पढ़ाया है और 40 बच्चों में से ABCDEFGH, तो FG और I को 3 बच्चे रैंडमली, इनको समझ में नहीं आया, टीचर्स न्यू दैट। लेकिन वो बच्चा बोलता है यस, हम भी मोनोटोन से बोलते हैं ओके 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 थैंक यू। डोंट डू दैट, है ना। अटेंशन सीकिंग एक्टिविटीज की बात हो रही थी, ठीक है, तो मैं अटेंशन सीकिंग एक्टिविटी दोबारा से आई वुड लाइक टू कम ऑन टॉपिक कि वॉइस मॉड्यूलेशन इज मैंडेटरी। अभी मैं जो सेशन ले रहा हूं, अगर इसको मैं मोनोटोनसली लूं, अगर एक ही बात 5 बार, बच्चों मेक अ क्यू, लाइन में चलो, डोंट डू इट, डोंट नहीं, एक ही बात को नीड नोट टू दोहराना बार बार एक ही चीज, नीड नोट टू रिपीट डेली वन थिंग, नीड नोट टू रिपीट। भाई अटेंशन लेना तो रिपीट करना, अटेंडेंस लेना तो रिपीट करना पड़ेगा, अटेंडेंस तो रिपीटेशन वाला काम है कि डेली आपको अटेंडेंस लेना है। डेली बच्चे आपसे बोलते हैं गुड मॉर्निंग मैम, आप बोलते गुड मॉर्निंग बच्चा, नहीं, आपको बोलना है यस वेरी वॉर्मफुल मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स, यस मेलोडियस मॉर्निंग टू ऑल। हाँ, कुछ ऐसा अगर एकदम अलग टाइप से वर्ड यूज करो कि बच्चे बोले कि नहीं आज मैडम दूसरे फॉर्म में है। आपने बोला, बच्चे ने बोला मोनोटोनली गुड मॉर्निंग, आपने बोल दिया गुड मॉर्निंग बेड आओ, ऐसा नहीं, थोड़ा सा अलग टाइप का उसको हुक दीजिए ताकि बच्चों को समझ में आए कि गुड मॉर्निंग मैडम आ गई है भैया, मैडम तेज है, ये ऐसे काम नहीं चलेगा, पूरे 35 मिनट हमें अटेंटिव रहना पड़ेगा। कारपोरल पनिशमेंट इज नॉट अलाउड एनीबडी इन द रूल। तो क्या करेंगे टीचर्स, क्या, हाँ मतलब मैं तो समझता हूँ कि एडुकेटर्स का जीवन तो बड़ा चैलेंजिंग बनता जा रहा है, सो सही में बनता जा रहा है। कैसे डील करेंगे भाई, मोनोटोनसली मत हो, है ना, आवाज को ऊपर नीचे करो 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार। आवाज के साथ साथ योर वॉइस एंड आईज शुड बी कमांडेबल इन कंट्रोल। बच्चे को देखा तो बच्चा आधा तो वैसे ही हो गया, रीडिंग, बच्चे को इतनी सुपीरियर तरीके से देखा, आंखों में इतना डर बनाया। अब इतना सारा चीजें बोलते हैं, मैं जानता हूं, आई एम अ पब्लिक स्पीकर, लास्ट 15 ईयर आई एम डूइंग पब्लिक स्पीकिंग। ये सारा जो स्लाइड्स है ना, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में 10% भी काम नहीं आता, क्योंकि दीज आर ऑल द थ्योरी। प्रैक्टिकल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से
कि प्रैक्टिकली टीचर सोचता है कि ये बच्चा घिर जाता है टीचर कि भाई ना मैं मार सकता हूँ, प्रिंसिपल सर पे बैठी रहती है, कॉर्पोरल पनिशमेंट देना नहीं है, ये बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। टीचर अंदर ही अंदर अपने आप करोचता रहता है। करोचो मत, व्हाई आर यू करोचिंग योरसेल्फ, राइट? बच्चे को साइड में ले जाके समझा दो कि भाई है ना, वी इन योर लिमिट, कमांडेबल बॉयज। आप रोते गाते बार बार प्रिंसिपल के पास जाते हो, जाके कान मुर्गा बना खड़े हो जा, कान पकड़ खड़े हो, खड़ा हुआ है बेवकूफो टाइप, आपका भी लेक्चर डिस्टर्ब हो रहा है, वो भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, ऐसे कुछ थोड़ी ना होता है। कमांड शुड बी इन योर वॉइस, कमांड योर, कंट्रोल योर क्लास, वेरी स्ट्रिक्ट वे। आवाज इतनी बुलंद कि टीचर ने हंस दिया, हा हा हा, बच्चे सब हंस दें। टीचर ने बोला स्टॉप स्टॉप लाफिंग, अब टीचर रोने लगा, बच्चे रोने लगे। इतनी कमांड होनी चाहिए, शार्प कमांड होनी चाहिए क्लास पे। ऐसा नहीं चलता क्लास मोनोटोनसली आप लेके। एम एंड ऑब्जेक्टिव, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गोल, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल, इफ स्टूडेंट्स आर इन टॉक अबाउट सीनियर सेकेंडरी 9th 10th 11th 12th, या फिर बच्चा कोई सा भी क्लास है, हर क्लास का, हर टीचर्स का दायित्व बनता है कि उसका एम ऑब्जेक्टिव क्लियर रहे। बच्चा झोला लेके स्कूल क्यों आ रहा है, व्हाई आई एम हियर इन द स्कूल, 9th क्लास के बच्चे को क्लियर रहे कि मैं क्यों बैठा हूं क्लास में, व्हाई शुड बी क्लियर। अगर बच्चे का 9th 10th 11th 12th चीजें सुन लीजिए आप ध्यान से, विद ओपन योर माइंड, ओपन योर, सॉरी टू लिटिल बिट रॉ, लेकिन देखिए क्या है कि these all are I am facing are कि ये सब चीजें क्या है कि बच्चों को पता ही नहीं है कि हम किस गली जा रहे हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं, टीचर को ही नहीं पता कोई ठिकाना है, तो चलने दो भैया, हमें भी तो सिलेबस कंप्लीट ही कराना आफ्टर ऑल। व्हाई शुड बी क्लियर, व्हाई आई एम हियर, बच्चे को क्लियर करवाइए कि व्हाई यू आर हियर। सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे लंच लेके 7 बजे स्कूल क्यों हो, व्हाई। डेली बोझा लेके क्यों आ रहे हो, क्यों घर जा रहे हो बोझा लेके 10 किलो का, व्हाई यू आर हियर। नहीं पढ़ना है, उसके पेरेंट्स से बात करिए, उसको घर बिठवाइए, छोड़ दीजिए, बोलिए कि भाई एक काम करो, उसको बिजनेस दिलवा दो या फिर जो भी है। लेकिन अगर बच्चा पढ़ रहा है, इफ देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन योर क्लास 9th and 10th, तो 42 स्टूडेंट्स का वाई क्लियर होना चाहिए। वाई 85% स्कोर करना, डेली बच्चे को 85 लिखवाइए फर्स्ट पेज रजिस्टर पे, और चस्पा दिए उसकी स्टडी रूम स्टडी में, और बोलिए उसके डेली देख के आना, 85 को स्कोर करना। देखो, यू शुड सी डेली योर गोल। And teachers also, class teacher, if you are a challenging teacher of challenging class like 10th and 12th, तो टीचर्स को भी डेली अपना कि भाई कि मेरे को इस क्लास से इतना परसेंटेज निकाल के लेना है, डेली बाय देखे वो अपना रोल एंड गोल। अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाएंगे, 14 चैप्टर है, अभी चौथे चैप्टर पे हूँ, 14 पढ़ाने हैं, कैसे जाएंगे, ये ऑल आर शॉर्ट टर्म गोल प्लानिंग, लॉन्ग टर्म गोल प्लानिंग, डे टू डे प्लानिंग, मंथली प्लानिंग एंड एनुअली प्लानिंग करते हैं आप, आई नो, लेकिन उसको शिद्दत से नहीं करते हैं, इसलिए रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी नहीं हो पाती। यस्टरडे हम लोग अपने ग्रुप पे कुछ टीचर्स से बात कर रहे थे, टीचर्स दे आर फनी रिप्लाई। देखिए टीचर्स, एक बात समझ लीजिएगा, कोई भी स्कूल, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी प्रिंसिपल के पास आपकी हर समस्या का समाधान नहीं है, किसी भी सेशन के पास। दिस इज द वेरी प्रैक्टिकली विद द बॉटम साइड ऑफ माई हार्ट आई एम पोरिंग माई एक्सपीरियंस टू यू ऑल, है ना। टीचर्स थिंक लाइक कि हमारे कुछ भी समस्या आएगी तो हम डिस्कस कर लेंगे, नहीं भाई। देखिए जिंदगी में, जिंदगी ऐसी ही है, जिंदगी इज क्वाइट लिटिल बिट रोलर कोस्टर, यू थिंक अप एंड डाउन। तो आपकी हर, डोंट ट्राई टू फाइंड आउट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ योर ईच प्रॉब्लम, हर समस्या का समाधान निकालने की कोशिश मत कीजिए। निकालने की कोशिश करेंगे, टेंस लाइफ व्यतीत करेंगे जिंदगी भर, घर पे भी और स्कूल में भी, पहला। दूसरा, इस स्लाइड के माध्यम से आई वुड लाइक टू कन्वे टू यू ऑल, देयर आर समथिंग विच इज इन योर कंट्रोल, देयर आर समथिंग विच इज आउट ऑफ योर कंट्रोल। आर यू गेटिंग? यहां पे देखेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, क्लासरूम एटमॉस्फेयर इज इन योर कंट्रोल, बट क्लास साइज इज इन नॉट योर कंट्रोल। अगर उस क्लास में मैनेजमेंट को 50 बच्चे बैठाना है या नहीं बैठाना है, क्लास साइज 50 बच्चों की तो है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट इवन। तो उससे क्लास साइज आपके कंट्रोल में कभी नहीं रहेगी, कभी ना आज तक थी, आप सोचिएगा, ना आगे रहेगी। क्लास साइज इज ऑलवेज कंट्रोल इन योर प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट। आर यू गेटिंग? क्लास साइज मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स, क्लास साइज मतलब कि आपके क्लास का क्षेत्रफल भी और आपके बच्चों की क्लास में संख्या भी।
ये टीचर के कभी कंट्रोल में नहीं रही है, ना भूतो ना भविष्यति, ना आगे रहेगी। तो भाई क्लास में अगर 35 बच्चे हैं या 65 बच्चे हैं, देर आर 30 स्टूडेंट्स और इवन 65 स्टूडेंट्स, वो आपके कंट्रोल में कभी नहीं। व्हाट इज इन योर कंट्रोल? योर क्लासरूम एटमॉस्फेयर, योर प्रिपरेशन एंड योर बिहेवियर। इवन देन स्टूडेंट्स का बिहेवियर भी आपके कंट्रोल में नहीं है। स्टूडेंट्स कैसा बिहेवियर करेगा आपके कंट्रोल में नहीं है। स्टूडेंट क्या क्वेश्चन करेगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है। यू शुड बी रेडी, वेल प्रिपेयर्ड। अभी इस सेशन के बाद आप मुझसे क्या क्वेश्चन कर लें, या मेरी स्लाइड सही जा रही है नहीं जा रही है, मैंने अपना काम कर दिया, मैं अपना काम कर रहा हूं, दैट्स इट। तो वही आपको करना है कि आपको अपना विजन, अपनी प्लानिंग पेपर रखनी है, दैट्स इट। अभी लाइट चली जाए, अभी नेट चला जाए, अभी ये मीटिंग खत्म हो जाए, इट इज नॉट इन माय कंट्रोल। बट थिंग इज इन माय कंट्रोल, वो मैं कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। दैट्स द एजेंडा ऑफ द मीटिंग, कि भाई क्या मैनेजमेंट है, लाइफ मैनेजमेंट। तो ये चीज समझ लीजिए कि जीवन में हर चीज कंट्रोल में नहीं है। यस, दिस इज द वेरी इंटरेक्टिव स्लाइड्स, एवरीबॉडी सी। दोस्तों, डियर एडुकेटर्स, एक बात ध्यान रखिएगा, वी आर फाइटिंग विद जेन ज़ी जनरेशन। दो वी आर मिलेनियल, हम 1947 के एजुकेशन से पढ़े हुए हैं, लेकिन हम 21st सेंचुरी को डील कर रहे हैं। वो स्टूडेंट्स जिससे पैदा होते ही वो व्हाट्सएप से पहले व्हाट्सएप रील और इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करता है, उस वर्ल्ड में हैं हम। दिस इज द लास्ट स्लाइड, दिस इज द लास्ट स्लाइड एंड दिस इज द कंक्लूजन ऑफ कंक्लूडिव स्लाइड आल्सो। रीडिंग। तो टीचर, तो एडुकेटर, यू शुड बी रॉ। जैसे मैंने बताया ना, मंकी। भाई आप लोग अपने यू शुड बी बिहेव लाइक समथिंग रॉ, इनफॉर्मल। जैसे देर आर सम सोशल मीडिया वर्ड्स, एनजीएल, नॉट गोना लाई। आप बोल सकते हैं क्लास में आप बच्चे को बोलते सकते हैं नॉट गोना लाई एनजीएल, बच्चा सोचा है मैम आज रील स्क्रॉल करके आई है इंस्टाग्राम। नहीं भाई, मतलब should have a good connection with the class, should have a good two-way interaction with the class. आपको ये वर्ड्स जो हैं, जो लिखे हुए हैं, it's all Gucci, it's all good. फ्लॉपिंग एरा मतलब फेल, ये वर्ड्स मैं भी ज्यादा यूज नहीं करता हूँ। इस स्लाइड के लिए मैंने कल आप नेट से चुराया है, आप लोग भी कॉपी कर सकते हैं, यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट। लाइक गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, स्टैन, बिग फैन। अरे बोलो बच्चा तू कितना अच्छा कर रहा है, आई एम योर स्टैन, आई एम योर बिग फैन, है ना। तो ये सारे फंसी वर्ड, फैंकी वर्ड, बुजी वर्ड, आई एम calling to you बुजी वर्ड। बुजी मीन्स फैंसी वर्ड्स। So try to use all these things. Dear teachers, this is exactly the basic online Zoom classes is going on. ये जो क्लासरूम के मैनेजमेंट के ऊपर जो आपने मेरा प्रेजेंटेशन देखा सुना, now the presentation is get over. If anybody wants to share something, anybody wants have a question about anything, so हम बात कर सकते हैं क्वेश्चंस पे। लेकिन what I am trying to figure it out कि ये जो हम लोग we are from millennial generation, I respect all the teachers by heart, bottom side of my heart, लेकिन this is the सच्चाई of that era. Like we have a 42 students